Ignited Minds Tutorials, a renowned educational platform, has recently released an informative video on the topic of periodic classification of elements in chemistry for Class X Science. This enlightening tutorial aims to simplify the concept and enhance the understanding of students in this crucial subject. The video begins by introducing the periodic table and its significance in organizing various elements systematically. It dives into the historical development of the periodic table, highlighting the contributions of scientists like Mendeleev and Moseley. Exploring the periodic trends, the tutorial explains concepts such as atomic number, mass number, and valency. It sheds light on the periodicity observed in properties such as atomic size, electronegativity, and ionization energy across periods and groups. To aid comprehension, the video employs clear visual aids and examples, making it easier for students to grasp the concepts. It delves into the classification of elements into metals, nonmetals, and metalloids, elucidating their unique characteristics and chemical reactions. Furthermore, the tutorial elucidates the formation and implications of periodic trends, emphasizing the importance of periodic classification in predicting the properties and reactivity of elements. Overall, Ignited Minds Tutorials video on periodic classification of elements in chemistry for Class X Science is a comprehensive and insightful resource. IT empowers students with a solid foundation in the subject, fostering their curiosity and igniting their minds for further exploration in the world of chemistry. Okay, so as we go from left to right in a period, the nuclear charge increases, thus the pull between the electrons and the protons increases, therefore the atomic size decreases. तो इसलिए भाई साहब atomic size आपका decrease हो जाएगा, ठीक है? Okay. Atomic radius down the group, अगर हम नीचे जा रहे हैं तो बताइए क्या हो रहा है? शेल बढ़ रहा है, तो atomic radius बढ़ेगा तो size of atoms will increase. यहाँ पे shells बढ़ रहे हैं, ठीक है? तो now let's say we are considering, यहाँ पे देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ये आपके हैलोजेंस का ग्रुप हो गया। देखो इनका एटॉमिक रेडियाई अपन देख रहे हैं, ठीक है? सो यहाँ पे 64 पिकोमीटर, 99 पिकोमीटर, 114 पिकोमीटर और यहाँ पे हो गया आपका 133 पिकोमीटर। सो एज वी आर गोइंग डाउन इन अ ग्रुप ऑफ हैलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, वी आर सीइंग दैट देयर इज अ कांस्टेंट इंक्रीज इन द एटॉमिक रेडियस। ये एटॉमिक रेडियस भाई साहब बढ़ रहा है, ठीक है? एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है। ये क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ऑब्वियसली शेल्स ऐड होते जा रहे हैं, ठीक है? फ्लोरीन के ग्रुप में भाई साहब 2 ही शेल्स थे, यहाँ पे भाई साहब 3 शेल्स हो गए, यहाँ पे 4 शेल्स हो गए, यहाँ पे 5 शेल्स हो गए। तो जैसे जैसे शेल्स बढ़ते जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है कि आपका एटॉमिक रेडियस भी बढ़ता जाएगा। एटॉमिक रेडियस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है? ओके, सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, दिस इज बेसिकली फ्लोरीन का है। देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर और 7 इलेक्ट्रॉन्स सेकेंड ऑर्बिट में। यहाँ पे क्या है? देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ऑर्बिट में, 8 इलेक्ट्रॉन्स सेकेंड ऑर्बिट में एंड फाइनली 7 इलेक्ट्रॉन्स भाई साहब थर्ड ऑर्बिट में। ब्रोमीन का अगर हम देखते हैं 2, 8, 8 ऐसे करके भाई साहब एक और शेल बढ़ गया, ठीक है? आयोडीन का भाई साहब देखिए और एक शेल बढ़ गया। तो जैसे जैसे शेल्स आपके बढ़ते जाएंगे, बट ऑब्वियसली बात है कि भाई साहब आपका एटॉमिक रेडियस विल इंक्रीज। सो एज वी गो डाउन इन अ ग्रुप, द एटॉमिक रेडियस विल कॉन्स्टेंटली इंक्रीज, ठीक है? तो आपका भाई साहब एटॉमिक रेडियस, तो यहाँ पे 2 शेल्स है, यहाँ पे 3 शेल्स है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 शेल है। सो एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम एज न्यू शेल्स आर एडेड, ब्रिंगिंग आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स फर्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो जैसे जैसे भाई साहब आपके नए शेल्स ऐड होते रहते हैं, ठीक है, एटॉमिक रेडियस भाई साहब आपका बढ़ता रहता है, ठीक है? ओके, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, ठीक है, एज वी गो डाउन द ग्रुप। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स, जितने भी मेटल्स होते हैं वो भाई साहब क्या करते हैं, 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है एंड दे जनरली टेंड टू डोनेट दीज इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम स्टेबल, ठीक है? तो आपने देखा जैसे जैसे हम ग्रुप में जाते हैं, ये मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता जाता है। 4 पे तो भाई साहब शेयरिंग होती है और 5, 6, 7 पे भाई साहब क्या होता है, एक्सेप्टेंस बढ़ जाता है। तो जहां पे एक्सेप्टेंस बढ़ता है वहां पे नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो एज वी गो इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, नॉन मेटल्स हैव 4 to 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। In order to become stable, non-metals share or accept electrons and form negative ions. Therefore, non-metals are said to be electronegative. ठीक है? तो यहाँ पे सोडियम, पोटेशियम, ये आपका भाई साहब ग्रुप हो गया, ठीक है? बस यार 3 नॉन मेटल्स, ये आपके नॉन मेटल्स हो गए, ठीक है?
तो ये फर्स्ट 3 आपके क्या हो गया मेटल्स, क्योंकि दे बेसिकली डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसके बाद क्या होगी भाई साहब, शेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। दिस इज बिकॉज एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, देयरफॉर द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इजिली रिलीज्ड, अभी इलेक्ट्रॉन्स रिलीज नहीं होंगे। सो मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप, तो अगर आप देखोगे भाई साहब, आप अगर अक्रॉस द ग्रुप जा रहे हो, ठीक है, ऐसे जा रहे हो इन द पीरियड, द मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। Metallic character will decrease and non-metallic character will increase. When you are going down in a group, what will happen? बताइए, शेल इंक्रीज होगा, उससे मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा। देखो पहले वाले में सोडियम जैसे उसके पास एक शेल है 2, 8 और 1, पोटेशियम में एक शेल और बढ़ गया। जो इकलौता इलेक्ट्रॉन है जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, उसको छोड़ना ज्यादा आसान हो जाएगा कि पकड़ना, क्योंकि उसके ऊपर कम फोर्स लगता जाएगा, न्यूक्लियस से उसका दूरी बढ़ता जा रहा है हर एक शेल में, तो इसका मतलब इसको छोड़ना आसान हो रहा है। तो एज वी गो डाउन इन अ ग्रुप द मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, ठीक है, आपका भाई साहब मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा, लिथियम सोडियम पोटेशियम। तो यहाँ पे देखो इस इलेक्ट्रॉन को या इस इलेक्ट्रॉन को या इस इलेक्ट्रॉन को या इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ना आसान हो जाएगा, ठीक है। लेट अस कंसीडर ग्रुप 1A। सो इन अ ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। दिस इज बिकॉज एटॉमिक साइज इंक्रीजेस एंड वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी इजिली रिमूव, तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स को अपन इजिली रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्टिविटी ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट फर्स्ट डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस। तो केमिकल रिएक्टिविटी बढ़ती है और फिर घटती है। जैसे अगर आप देखोगे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्टिविटी यहाँ पे भाई साहब वेरी रिएक्टिव, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि इनको एक ही इलेक्ट्रॉन छोड़ना है, इनको भाई साहब 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ना है और इनको 3, तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इनको छोड़ने पड़ेंगे उतना ज्यादा इनको, हाँ कुछ और सोच के भाई साहब मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है। तो ये वेरी रिएक्टिव हो गए, सोडियम इज वेरी रिएक्टिव, सिलिकॉन भाई साहब लीस्ट रिएक्टिव है, और फाइनली क्लोरीन वेरी रिएक्टिव है क्योंकि इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। सो अगर आप देखोगे एक पीरियड में आप मूव कर रहे हो तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, केमिकल रिएक्टिविटी पहले डिक्रीज होगी और फिर इंक्रीज होगी। फर्स्ट केमिकल रिएक्टिविटी विल डिक्रीज and then from the middle it will start increasing, ठीक है। first it decreases, ठीक है, and then chemical reactivity starts to increase। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा बाड़ी? okay, so the chemical reactivity of metals increases on going down in a group of the periodic table। भाई साहब केमिकल रिएक्टिविटी क्यों बढ़ जाएगी बता सकते हैं? क्योंकि उस एक, ये आपका लीस्ट रिएक्टिव होगा और ये मोस्ट रिएक्टिव होगा, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन को छोड़ना है तो आपके मेटल्स के लिए छोड़ना आसान हो जाएगा। Chemical reactivity of metals increases on going down in a group because it is easier to donate that outermost orbital electron, ठीक है, okay। So as we go down in a group of metals, the tendency of their atoms to lose electrons increases and hence their chemical reactivity also increases। इनका chemical reactivity भी भाई साहब increase हो जाएगा। तो as we go down in a group of halogens, क्या हो जाएगा भाई साहब, यहाँ पे group 17 है, तो most reactive है, least reactive है। केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स डिक्रीजेस ऑन गोइंग डाउन इन अ ग्रुप, तो नॉन मेटल्स में डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि देखो इन सब में एक इलेक्ट्रॉन का आना बनता है, लेकिन देखो फ्लोरीन में ये यहां पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियर फोर्स इसको खींच रहा है, ठीक है। क्लोरीन में जाएंगे तो एक और शेल बढ़ गया, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा, तो किसमें ज्यादा न्यूक्लियर फोर्स, ये आते वाले इलेक्ट्रॉन पे किसमें ज्यादा न्यूक्लियर फोर्स लगेगा, क्लोरीन में कि फ्लोरीन में? क्लोरीन में कि फ्लोरीन में? भाई साहब देखो यहां पे 2, ये एक शेल है 2, 8 एंड 7, तीसरे शेल पे आ रहा है, यहां पे 2, 8, 7 फिर इसमें आ रहा है। तो जैसे जैसे आपके शेल्स बढ़ते जाएंगे, आते हुए इलेक्ट्रॉन्स पे सेंटर न्यूक्लियर का जो फोर्स है वो कम होता जाएगा क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है। सो केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स डिक्रीजेस ऑन गोइंग डाउन इन अ ग्रुप, सो नॉन मेटल्स में ये लीस्ट रिएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। द टेंडेंसी ऑफ देयर एटम्स टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, टेंडेंसी ऑफ देयर एटम्स टू गेन इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस ड्यू टू विच देयर रिएक्टिविटी आल्सो डिक्रीजेस, तो आपका रिएक्टिविटी भाई साहब डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ऑन गोइंग डाउन इन अ ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, देयर इज नो चेंज इन द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो लिथियम सोडियम, क्योंकि ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट्स में कोई चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताइए फटाफट। Why will there be no change in going down in a group? बच्चा बाड़ी, why will there be no change in going down in a group? ऑक्साइड्स, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स में, अरे भाई साहब बहुत आसान सा सवाल है। अरे इन सब की वैलेंसी क्या होगी 1 और ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होगी 2, तो भाई साहब क्या नेचर होगा कंपाउंड का?
भाई देखो यहां पे समझ लो सोडियम को उठाया हमने, ठीक है, सोडियम है, सोडियम की वैलेंसी क्या है 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है 2, फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विल बी व्हाट, Na2O, ठीक है। वैसे ही पोटेशियम की वैलेंसी क्या है 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा K2O भाई साहब। इसका लिथियम का भाई साहब आपका 1, ऑक्सीजन का 2, तो क्या फॉर्मूला होगा लिथियम ऑक्साइड। तो सबकी प्रॉपर्टीज भी सेम होगी, their properties will be the same, ठीक है, because the same number of electrons are getting exchanged. So when we are going down in a group of metals, ठीक है, on going down in a group of periodic table, there is no change in the nature of oxides of element, no change. All the elements of group 1 form basic oxides. All the elements of group 1 are metals and metals tend to form basic oxide. Fluorine, chlorine, bromine और iodine, यहाँ पे भाई साहब अगर ग्रुप 17 के एलिमेंट्स देखें, all the elements of group 17 form acidic oxides. ये सब के सब क्या बनाएंगे, बेसिक ऑक्साइड्स। बेसिक ऑक्साइड्स ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जिनको अगर आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे सो दे विल फॉर्म बेसिस, ठीक है, व्हिच विल टर्न रेड लिटमस ब्लू। एसिडिक ऑक्साइड्स आर ऑक्साइड्स इफ वी डिसॉल्व देम इन वाटर दे विल फॉर्म एसिड्स व्हिच विल टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ठीक है, ओके। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स और मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द बेसिक नेचर ऑफ द ऑक्साइड डिक्रीजेस। तो धीरे धीरे यहाँ पे एसिडिक नेचर बढ़ेगा और यहाँ पे भाई साहब बेसिक नेचर डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। बेसिक नेचर विल डिक्रीज एंड एसिडिक नेचर विल इंक्रीज, ठीक है। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन थर्ड पीरियड का एलिमेंट लिया हुआ है। वी आर गोइंग इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सो वी विल सी दैट द बेसिक नेचर ऑफ दीज ऑक्साइड्स विल डिक्रीज एंड देयर एसिडिक नेचर विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, एसिडिक नेचर विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। हाईली बेसिक ये हो जाएंगे एम्फोटेरिक और ये हो जाएंगे हाईली एसिडिक। एम्फोटेरिक मतलब क्या होता है, व्हाट डू वी मीन बाय एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मतलब जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और जो बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर पर्टिकुलरली ऑक्साइड्स व्हिच आर कंफर्टेबल इन रिएक्टिंग विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है। ये आपका हाईली बेसिक हो जाएगा और ये आपका हाईली एसिडिक हो जाएगा। दिस विल बी हाईली बेसिक एंड दिस इज हाईली एसिडिक, ठीक है। So basic nature of oxide decreases and acidic nature of oxide increases. So when we go down, or rather in a period when we are going from left to right, the basic nature of oxide decreases and the acidic nature of the oxide increases, ठीक है। Okay, okay, okay. Electron affinity. Now what is electron affinity? Electrons को अपनी तरफ खींचने की जो प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी होती है, उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। The amount of energy released when an atom in the gaseous states accepts an electron from an ion, ठीक है। तो जैसे समझो भाई साहब यहाँ पे X एटम है, इसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, X एटम गैसियस स्टेट में है, तो ये बन गया क्या, अनायन, क्योंकि अभी इसके अंदर तालमेल बिगड़ गया। इसके पास पहले प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर थे, लेकिन क्योंकि इसने बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, hence it has formed an anion। इसमें अभी नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया है, so it has formed an anion। Are we clear? ठीक है। So any X atom in the gaseous state, when it accepts an electron from outside, obviously it will get converted into an anion which is a negative radical, ठीक है। और इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, एनर्जी लिबरेट होती है, ठीक है। तो इसको अपन बोलेंगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जैसे अगर आप देखोगे क्लोरीन, क्लोरीन भाई साहब यहाँ पे -3.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। इतना एनर्जी, ये आप समझ नहीं पाओगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, लेट इट बी। अभी इतना समझिए कि अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन जब वो एक्सेप्ट करेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसको अपन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। नेगेटिव साइन मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, ओके। सो लेट्स से भाई साहब यहाँ पे क्या है आपका, फैक्टर्स विच अफेक्ट द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एटॉमिक साइज, जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होता जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती जाएगी। क्यों बोलो, देखो समझ लो फ्लोरीन है, इसके आजू में 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर है भाई साहब 7 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे एटम इसको ज्यादा जोर से खींचेगा, ठीक है। अभी क्लोरीन में क्या हो गया, एक शेल बन गया और उसके बाहर एक शेल, तो 2, 8 फिर 7 बन रहा है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है दैट विल एक्सपीरियंस अ लेसर फोर्स फ्रॉम द सेंट्रली पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, ठीक है, इसीलिए कम एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, ओके। सो जैसे जैसे भाई साहब एटॉमिक साइज बढ़ेगा, ठीक है, जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे जाएंगे एटॉमिक साइज आपका बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे लगता हुआ सेंट्रली पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियर का फोर्स वो कम होता जाएगा, दैट विल बेसिकली डिक्रीज। रीजन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। अ स्मॉल एटम टेक्स अप इलेक्ट्रॉन्स मोर रेडिली देन अ लार्ज एटम सिंस न्यूक्लियस ऑफ द एटम हैज द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो न्यूक्लियस एटम का एक्सेप्ट कर रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस। अगर हम पीरियड में जा रहे हैं, देखो
पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो आपका क्या हो रहा है, सेंट्रली पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस का बढ़ता जा रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है तो न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ता जाएगा। जितना ज्यादा न्यूक्लियर का चार्ज होगा उतनी फोर्स से वो खींचेगा। अगर शेल नहीं बढ़ रहा है लेकिन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है, और जोर से खींच पाएगा न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। ओके, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, सिमिलरली देयर इज एन इंक्रीज इन द टेंडेंसी ऑफ द एटम टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, द टेंडेंसी ऑफ द एटम्स टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर आप देखोगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आप यहां पे देखो दो ही शेल्स हैं, सब में दो शेल्स हैं, ठीक है। तो लिथियम का एक एटम एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा और यहां पे फ्लोरीन का एक एटम एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा। कौन ज्यादा जोर से पुल करेगा? ऑब्वियसली फ्लोरीन, ठीक है, क्योंकि भाई साहब इसको जरूरत है। पहली बात तो ये तो इलेक्ट्रॉन देने के कगार में है, यहां पे इलेक्ट्रॉन जरूरत है, ये फटाक से पुल करेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, ठीक है। दिस विल बी हैविंग मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो आप देखो भाई साहब यहाँ पे ये तो एक्सेप्शन हो गया, ये बाद में हम समझेंगे। आप देखो यहाँ पे कितना बढ़ गया है, देखो मतलब अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ही रिलीज करेगा। इसने अगर एक्सेप्ट किया तो इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज एनर्जी करेगा, ठीक है। सो मोर एनर्जी इज गेटिंग रिलीज देयर, ठीक है। सो एटॉमिक रेडियाई, तो जैसे जैसे भाई साहब एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होता जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भाई साहब इंक्रीज होता जाता है। हाईएस्ट फॉर हैलोजेंस, लीस्ट फॉर एल्कली मेटल्स। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। नियॉन गैस हैज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0, तो नियॉन गैस का भाई साहब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 हो जाएगा। भाई साहब क्यों ही जरूरत है उसको इलेक्ट्रॉन की, वो एक इनर्ट गैस है, इट डजंट नीड एनी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो नियॉन गैस हैज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 सिंस नोबल गैसेस विद स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। ओके भाई साहब, ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डाउन इन अ ग्रुप। अगर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को देखते हैं डाउन इन अ ग्रुप, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो एटॉमिक रेडियाई जब इंक्रीज हो रहा है तो शेल्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, इसीलिए इंक्रीजिंग नंबर ऑफ शेल पे लगता हुआ जो न्यूक्लियर फोर्स है वो भी डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। सो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा भाई साहब, डिक्रीज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल डिक्रीज। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शुड इंक्रीज, ठीक है। इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई डोमिनेट्स ओवर इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। तो एटॉमिक रेडियाई बढ़ना, ठीक है, इट विल डोमिनेट ओवर इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। आर वी क्लियर, ठीक है। ओके, सो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज। जैसे आप ग्रुप पे जाएंगे नीचे तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है भाई साहब, व्हाट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। कितना एनर्जी चाहिए एक आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट ऑर्बिट से रिमूव करने के लिए, उसको अपन बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल। जैसे समझ लो कोई एटम है M, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को अगर आप रिमूव करेंगे तो M प्लस आयन बनाएगा, प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेकंड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो M प्लस से एक और को तो अगर हम हटाएंगे तो ये सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। ये सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल जनरली पहले वाले आयनाइजेशन पोटेंशियल से ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। फैक्टर्स ऑन विच द आयनाइजेशन पोटेंशियल, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा, जैसे साइज बढ़ता जा रहा है तो ये वाले इलेक्ट्रॉन पे सेंटर से लगता हुआ न्यूक्लियर फोर्स कम होता जाएगा, तो इसको निकालना आसान हो जाएगा, इसीलिए आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। एज एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस। न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ रहा है, इफ न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग, आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि और सख्ती से वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करके रखेगा, ठीक है। ओके, ट्रेंड्स इन आयनाइजेशन पोटेंशियल अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो अगर हम देखेंगे भाई साहब आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा बोलो, अगर हम पीरियड में मूव कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट तो यहाँ पे क्या बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल भी आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, देखो, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज, ठीक है, डिक्रीजेस, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, so आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। अगर एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होता है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ता है, अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ता है। इसीलिए व्हेन यू आर मूविंग इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस, ठीक है। अगर हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं तो ये आपके एलिमेंट्स हो गए। हम यहाँ पे देखेंगे भाई साहब आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहा है।
एटॉमिक रेडियाई बढ़ रहा है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है भाई साहब, इट इज ईजियर टू लूज दिस इलेक्ट्रॉन, इट इज ईजियर टू लूज, मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज हो जाएगा rather than this one, ठीक है। एज द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉनिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स जो एक्ट हो रहा है वो वीक होता जाएगा और इसीलिए इसको निकालना आसान होता जाएगा। सो एज वी आर मूविंग डाउन इन अ ग्रुप द आयनेशन पोटेंशियल विल डिक्रीज, ठीक है। सो ओवरऑल आयनेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा भाई साहब, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स कंप्लीट्स योर चैप्टर। हम कुछ PYQs करेंगे इस चैप्टर पे, ठीक है। कल प्रिपेयर होके आइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर